हेलो। एक एक आते रहेंगे। तो जे सिल्वेस्टर ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था 1848 में मैट्रिक्स को। ठीक है, मैट्रिक्स फर्स्ट नेम दिया था जे सिल्वेस्टर ने 19 19 नहीं 1848 को। सिल्वेस्टर 1848। ठीक है, ये पहले इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते थे। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कई सारे मेथड जानते हैं, उसमें एक मेथड है मैट्रिक्स, से भी जानते हैं, और अभी हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। तो मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ of elements in rows and columns. In and columns. Okay, so for mn element, mn elements means we have either m rows or n rows. We have m rows and n columns. N columns as A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AM1, AM2, AMN. So it have total m rows and total n columns. This horizontal line is said to be row and these vertical lines are said to be columns. And it is said to be M class n matrix. It have total Mn. And matrix is denoted by capital letters A and its element by small letters. Okay. And these elements are either real or complex. And according to the elements, these matrices are said to be real or complex matrices. Okay. Columns. Matrices are represented by big bracket, uh, small bracket, or columns. The elements of the matrix is written within
small bracket, R norm, R big bracket. Okay. Sometimes some author adapt curly bracket also to represent the matrix. And matrix is represented by capital letters. And matrix is denoted by bold letters or capital letters. Thus A, B, C, etc. Okay. Hello. So if all the elements of the matrix are real, they say then this matrix is said to be real matrix. If all or some elements are complex, then the matrix is said to be complex matrix. ठीक है? So first is real and complex matrix. We have right heading here. Real and complex matrix. So a matrix is said to be real. A matrix is said to be real or complex according to their elements. Complex according to their elements are real or complex respectively. Okay, respectively. Now raw matrix. So we have right heading here raw matrix. So a matrix is said to be raw matrix if it have only one row and n columns. Okay. So a matrix is said to be is said to be raw matrix if it have only one row, have only one row and n columns. Okay. A is equal to and it is a raw matrix. It is 1/4 matrix. Okay, so it is raw. Similarly, the matrix is said to be column matrix. Column matrix if it have only one column and n row. Matrix B is said to be column have only one column and n row. Okay, so it is said to be plus 1 and it is said to be 1 plus 4. Okay. Similarly, we have right null matrix or zero matrix. Null matrix, null or zero matrix. A rectangular matrix is said to be null or zero if its all elements are zero. It is a 2/3 null matrix or 0, 0, 0, 0. It is 2/2 null matrix.
Here O1 we have represented by O1 or O2. These are null matrices. Okay. Square matrix. A matrix is said to be square if it have same number of row and columns. Okay. So square matrix. A matrix is said to be square if it have equal number of row and columns. A matrix is said to be square if it have same number of rows and columns. For example, we have right here x is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It is a 3 cross 3 matrix, so it is a square matrix. Similarly, we have write y is equal to 1 minus 1, 2 minus 3. It is a 2 cross 2 matrix. So both x and y are square matrices. Okay. Hello. Okay. Now we come on the tri up tri upper triangular matrix. Okay. So सब पहले identity matrix बता रहे. Identity matrix. A matrix is said to be identity matrix. A square matrix is said to be matrix is said to be is called identity matrix. Matrix if its principal diagonal element are 1 diagonal if its elements are 1 and other elements are 0. Elements are 0. Okay. So we have right here I3. I3 means 3 represent for 3 square matrices. So principal diagonal elements are 1. So we have right here 0, 0. So it is a identity matrix. We have right simply in terms of this 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Similarly, we have right I2. I2 is a 2 square identity matrix. Two with 2 elements. Okay. So it is a 3 identity matrix and 2 identity matrix. Now we have that diagonal matrix. What is the diagonal matrix? Diagonal matrix. A matrix is said to be diagonal if its only non-zero elements are diagonal elements. Okay. So a square matrix is said to be diagonal if its non-zero elements are only diagonal elements. So elements
are only diagonal elements. Okay, so we have represent D as diagonal matrix. So 1, 2, minus. Its only diagonal elements are non-zero and all other elements are zero. So this is a diagonal matrix. Okay. Hello. Similarly, we have write scalar matrix. Scalar matrix. A square matrix is said to be scalar. A square matrix is said to be scalar matrix uh, scalar या K scalar matrix if its principal diagonal elements are K and all other other elements are zero. ठीक है. हेलो. मतलब केवल इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट रहे और वो हमारा के रहे. So it is a K scalar matrix. It is a K scalar matrix. Okay. Now we come on the upper triangular and lower triangular matrix. Upper triangular ये हमने बताया है पहले. A matrix is said to be upper triangular. बता ही देते. Upper triangular matrix. Upper triangular matrix. हेलो. हाँ हेलो. हाँ, upper triangular matrix are those matrix in which upper diagonal elements are non-zero. 1, 2, 3, 0, 2, 4, 0, 0, 4. Means these elements are non-zero and it is a triangle. It is a triangle and in upper part of the matrix. So it is said to be upper triangular matrix. Similarly, we have like lower triangular matrix. Okay. Similarly, we have like lower triangular matrix. Matrix. So lower triangular matrix have non-zero element in lower part of the matrix. सॉरी, ये भी हमारी लोअर हो जाएगी. यहाँ भी जीरो हो सकता है. तो इट इज ए triangle type and in which lower part of the matrix. So it is a lower triangular matrix. Okay.
Similarly, we have write singular or singular and non-singular matrix. Singular and non-singular matrix. Okay. The matrix is said to be singular if its determinant is 0, and a matrix is non-singular if determinant is non-zero. Okay. So a matrix A, मैट्रिक्स ए को हम बदल देते हैं बी से, तो मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी सिंगुलर singular if determinant of b is equal to 0 and non-singular if determinant of b not equal to 0. ठीक है. Non-singular means inversible matrix. So the necessary condition for a matrix is inversible means it have inverse is non-singular. ठीक है. So it is also called inversible matrix. If non-singular और यहाँ पे हम यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं inversible. Inversible. Okay. If the matrix have non-zero, if the matrix is singular, then it is not inversible. Okay. Now, what is the transpose of the matrix? Transpose of the matrix is the is obtained by original matrix by converting its row into column and column into row. Okay. Hello. Hello class. Transpose of a matrix. So transpose of a matrix A matrix A is denoted by A dash or A T and obtain from A by changing rows into columns and columns into row. For example, if we have write A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, then its transpose is represented by 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. This is the transpose of the matrix. Okay. And we know that transpose of the transpose is the original matrix. Transpose of the transpose is original matrix. Now we have write symmetric matrix. Symmetric matrix. A matrix is said to be symmetric if it's equal to its transpose. A matrix is said to be symmetric if A is equal to A का transpose. Okay. If A is equal to A का transpose. So let us write
For example, we have write A is equal to 1, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 3, 5, 6. Okay. And now we have write is transpose is equal to A transpose. A transpose is same 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 2, 4, 5, and 3, 5, 6, and 6. So it is same. A is equal to A dash. A is equal to A dash. So this is a transpose matrix. Symmetric matrix. Now, skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. A matrix B A is said to be skew symmetric. Or we have write different letters. B is said to be the matrix B is skew symmetric if B is equal transpose is equal to minus of B. If B is equal to minus of B, then the matrix is said to be skew symmetric. So what is the example of B? Example is equal to 0, 2, 3, minus 2, 0, 4, minus 3, minus 4, 0. So write it transpose B dash is equal to 0, 0, 2, 3, minus 2, 0, 4, and minus 3, minus 4, 0. Multiplying by minus, we have that minus and minus 0, 0, minus 2, 3, minus 2, 0, 4, minus 3, 4, and 0. So we have that it as minus of B. This is same as B. So we have that here B is equal to B transpose is equal to minus B. Hence it is a skew symmetric matrix. It is a skew symmetric matrix. So what is the property of skew symmetric matrix? Its diagonal elements is always 0. Why its elements are 0? Because we know that if for skew symmetric matrix B is equal to minus B and elements of B is equal to Aij and elements of B transpose is equal to Aji because we have interchange row by column and column by row. Okay. Hello class. If B is equal to Aij, then B transpose is equal to Aji. Okay. Hello. Because transpose is obtained from original matrix by interchanging row into column and column into row. So when we interchange row I by J, then it becomes Ji in transpose. Okay. So this property holds for each element of the matrix. So here we have write B transpose is equal to Aji. Here B dash is equal to minus B. So this is equal to Aji and it is equal to minus of Aij because it is hold for each element and in diagonal element I and J both are same. Hello? Because diagonal element have 1, 1, 2, 2, 3, 3. So I and J are both same for diagonal element. So for diagonal elements we have write Aii is equal to minus Aii. Okay.
So taking it left side, we have write 2aii is equal to 0, and 2 is arbitrary. So what happens here? aii must be 0. Okay. So for any skew symmetric matrix, the diagonal element must be 0. For any skew symmetric matrix diagonals elements are hence must be 0. Okay. Hello. Hello class. Any doubt? कोई डाउट? चलिए ठीक है। तो वी हैव सीन हियर। हाँ बोलिए क्या? सभी जीरो रहेंगे ना, ए आई आई है, वन वन नहीं है, ए आई आई है। आई जो है जितने एलिमेंट है उन सब के लिए है। ये आई 1 2 3 4 जितने भी है, एन क्रॉस एन की है तो एन एन तक जाएगा। ठीक है। A11 A12 A13 A23 A21 ऐसे होता है ना, A31 A32 ऐसे होता है ना। फर्स्ट रॉ को 1 से रॉ रिप्रेजेंट कर रही है पहला डिजिट, और सेकेंड डिजिट कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। तो डायगोनल एलिमेंट यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, यही तो डायगोनल एलिमेंट है। ओके। यहाँ जो फॉर डायगोनल्स। ठीक है। एंड फॉर सिमेट्री, इसकी सिमेट्रिक, फॉर इसकी सिमेट्रिक। ठीक है। ये हम so this is the property of the symmetric. Now we come on orthogonal matrix. Orthogonal matrix. A matrix is said to be orthogonal. A matrix is said to be orthogonal matrix. Matrix is said to be orthogonal matrix if A into A का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके। If A into A का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, then the matrix is said to be orthogonal matrix, and it is same as the definition of the inversible matrix. Okay. A matrix is said to be inversible if A into B is equal to I, and B is said to be inverse of A. Hello. Hello class. ऑर्थोगोनल समझ में आ गया आपको? अगर A इंटू A डैश इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए तो ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। तो इसका एग्जाम्पल हम लिख लेंगे बाद में, चलो लिख देते हैं। मान लीजिए साइन थीटा है, एक कॉस थीटा है, ये माइनस कॉस थीटा है और ये साइन थीटा है। ये मैट्रिक्स ए है। ठीक है। इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा, और ये हमारा साइन थीटा। अब ए इंटू ए का ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा। अब इसका तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में, और ये हमारा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस में, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा
और माइनस कॉस थीटा इज माइनस कॉस थीटा प्लस इसका इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा एंड साइन थीटा एंड साइन थीटा। फिर इसका माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर इसका इसमें साइन थीटा कॉस थीटा। फिर इसका माइनस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे जीरो हो गए, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये हमारा जीरो, ये हमारा जीरो, ये हमारा 1। सो इट इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, हियर it is equal to I. So A into A transpose is equal to I means A is orthogonal. Okay. Hello class. तो ये सब हमारे रियल मैट्रिक्स के लिए है। सेम ऐसे ही फार्मूला हमारा आता है हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन एंड यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए। तो अगर हमारी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे ये हमारे एलिमेंट्स रियल नंबर हैं, तो अगर हमारी मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, जैसे A इजकल टू हम लिखे ए आई जे प्लस आई बी आई जे, ठीक है, तो इसके एलिमेंट हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर आई हमारा आ गया एक्स प्लस आई वाई के टाइप में हो जाएंगे। चलिए हम दूसरे रूप में लिखते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स से है, उसके एलिमेंट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं एक्स प्लस आई वाई टाइप के, तो हमारी मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे कि हम एक लिख सकते हैं ए इजकल टू 2 + 3i 2 - 3i -4 + i एंड 1 + i। तो इसके एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो ये हमारी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हुई। ओके, हेलो हेलो। अब इसमें भी हमारा जैसे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल लिए थे, वैसे ही इसमें भी होता है हमारा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में। तो इसमें होता है, अगर सिमेट्रिक है तो उसे हम कहते हैं हार्मिशियन मैट्रिक्स। हार्मिशियन हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है कि ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशियन। ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स is said to be Hermitian if A is equal to A का ट्रांसपोज। अगर इसके ट्रांसपोज के बराबर है तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ओके, इफ ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। और अगर हमारा ऐसा नहीं है, माइनस के साथ आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, सो वही ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशियन, हर्मिशियन इफ ए का ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ हो गया। और इसी को अब जैसे हमने यहाँ पे इसकी सिमेट्री के लिए लिया है ना, जीरो होता है, तो इसके एलिमेंट जो हैं कॉम्प्लेक्स के, इसके सारे डायगोनल एलिमेंट रियल। ठीक है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल। इसमें हमारे ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल। और इस वाले में क्या होता है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो आर प्योरली इमेजिनरी, आर प्योर इमेजिनरी। जीरो हो सकता है
या नहीं तो इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है। अब इसमें जब प्रॉपर्टी हमारी ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाती है, उसे हम कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, so a matrix is a complex matrix, a complex matrix, a complex matrix is said to be unitary if a is equal to a का trans sorry, if a transpose is equal to identity, a into a का ट्रांसपोज is equal to identity मैट्रिक्स, तो हमारी कहलाती है ये यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, तो ये तो हुआ एलिमेंट्री हमारी मैट्रिसेस। ठीक है, और हमारा सिलेबस अब, हाँ एक, अब हम सिलेबस अपना स्टार्ट करेंगे, और डाउट है वो बताइए क्या डाउट है। सिलेबस हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, आपको पता है क्या है, डाउट है? ये जो मैट्रिक्स आएगी ना आपकी, वो इस फॉर्म की आएगी। इसको हम, चलिए इसका एग्जांपल दे रहे हैं, तो इसका एग्जांपल होगा आपका, मान लीजिए ये हो गया 2a हो गया, तो 2 क्रॉस 2 की हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं सिंपली, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, तो ये इस टाइप का होगा, 2 या 3 क्रॉस 3 का लिख देते हैं, 2 1 - i 1 + i, और ये हो जाएगा आपका 1 + i और 3 एंड -1 + 2i लिख देते हैं यहाँ पे, -1 + 2i, और ये हो जाएगा आपका 1 - i, और ये हो जाएगा -1 - 2i, और ये हो गया 4। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे -1 + 2i। ओके, देखिए इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, सभी रियल नंबर है। ओके, तो ये हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स हुई। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा कि सारे डायगोनल एलिमेंट या तो जीरो होंगे या इमेजिनरी नंबर होंगे, तो यहाँ i 4i और 3 - 2i, ऐसे हमने कर दिया। इसको हम कर दिए, तो इसको हम कर दिए गलत हो गया बेटा, एग्जाम्पल गलत कर दिया हमने, ये माइनस ही होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -4i 0, और ये हो जाएगा आपका 3 + 2i। इसको हम लिख सकते हैं 3 - 2i, ये हो जाएगा 3 - 2i, और ये हमारा 0, ये से होगा। ठीक है, ये तो या तो इमेजिनरी नंबर है या 0 है, ऐसे। हेलो, देखो बेटा, अब हम तुमको प्रूफ कर, ये है ना हमारा हर्मिशियन के लिए, तो हर्मिशियन के लिए मैट्रिक्स क्या है, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, तो ये फॉर्म होगा x + i y का, xij +i y j, इस फॉर्म का होगा। और अगर मैट्रिक्स हमारी हर्मिशियन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a = -a का ट्रांसपोज। ठीक है, फॉर हर्मिशियन। ओके, आई बात समझ में? तो
इसके एलिमेंट तो यही हो गए एक्स आई जे प्लस आई वाई आई जे, ठीक है। अब इसके माइनस हो गए और इसका ट्रांसपोज हम ले लें तो आई की जगह पे जे हो जाएगा, जे की जगह पे आई हो जाएगा, ठीक है। एक्स जे आई प्लस आई वाई जे आई, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस का माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जेड है तो जेड को लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई, और जब इसका ट्रांसपोज करते हैं तो इसको हम लिखते हैं जेड बार इजकल टू, ये हो जाता है हमारा एक्स माइनस आई वाई, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज जल्दी ट्रांसपोज ही नहीं है, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ए थीटा, ए थीटा हमारा, ठीक है। ए थीटा क्या है? ए थीटा इज द, ए थीटा जो है हमारा, ए थीटा इजकल टू ट्रांसपोज है और कॉन्जुगेट है, सॉरी कॉन्जुगेट है और ट्रांसपोज है, दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं ए, ठीक है। हेलो, ये बाद मतलब कॉन्जुगेट है और ए मतलब ट्रांसपोज है, ठीक है। ए थीटा मैट्रिक्स, ए थीटा मैट्रिक्स इज द, इसको ट्रांसपोज कर लो फिर कॉन्जुगेट लगा लो, या कॉन्जुगेट ले लो फिर ट्रांसपोज लगा लो, दिस इज ए थीटा मैट्रिक्स, तो ये होगा। अब इसका हम ए थीटा ट्रांसपोज कर दिया, कॉन्जुगेट लगा दिए तो माइनस हो गया। अब इसको ओपन कर लें, ये हो जाएगा। अब हर डायगोनल एलिमेंट के लिए हम देखें इसका, तो डायगोनल एलिमेंट के लिए आई और जे दोनों बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स आई आई प्लस आई वाई आई आई, ओके, इजकल टू माइनस एक्स आई आई, हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस आई वाई आई आई, ओके। हेलो, तो ये इसको हम जोड़ घटा ले रहा है, तो ये क्या हुआ, ये हमारे इधर आएगा तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स आई आई, और ये सेम है तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये हो गया। तो क्या हो गया हमारा, ये दो तो जीरो होगा नहीं, तो क्या होगा, एक्स आई आई मस्ट बी जीरो, ओके। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसमें क्या आएगा, डायगोनल डी आई जे है, अगर डी आई आई है तो इसमें आएगा एक्स आई आई प्लस आई वाई आई आई, ठीक है। तो सारे डायगोनल हमारे जी, एक्स आई आई रियल पार्ट तो हमारा जीरो हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने गलत कर दिया, ये हर्मिशियन के लिए हमने लिखा था, नहीं स्क्यू हर्मिशियन के लिए लिखा था, हर्मिशियन, हाँ ये हर्मिशियन के लिए प्लस होता है। तो चलिए ये समझ जाइए, हम यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं, स्क्यू कर दे रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये डायगोनल एलिमेंट में ये तो जीरो हो गया, तो ये तो एब्सेंट रहेगा, तो क्या आएगा, डी आई आई, केवल आएगा आई वाई आई आई, मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट जरूर लगा रहेगा। और कभी कभी ये वाई जीरो जीरो हो गया तो पूरा एलिमेंट ही जीरो हो गया, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट क्या आएंगे, बोलिए। हाँ, तो आ गई बात समझ में, यही हमने बताया था। और ऐसे ही सिमिलरली हम हर्मिशियन के लिए लेके कर लेंगे, यहाँ पे माइनस हटा के, तो वहाँ पे वाई आई आई जीरो आ जाएगा, तो हमेशा क्या आएगा, एक्स आई आई आएगा, तो दी इमेजिनरी पार्ट इसमें आएगा ही नहीं हर्मिशियन के लिए, ओके। और कोई डाउट किसी को भी? ओके, नहीं है। तो अब हमें पढ़ना जो है, हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है वो होगा हमारा एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, हम ये बता रहे हैं आपको। एलिमेंट्री, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, रो में होते हैं या कॉलम में होते हैं। तो कॉलम
ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैट्रिक्स जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, किसी डाटा को स्टोर करने के लिए। तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। हेलो, मैट्रिक्स है नो वैल्यू। लेकिन अगर मैट्रिक्स हम एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को चेंज कर दें तो मैट्रिक्स हमारी चेंज हो जाती है, लेकिन मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती है, तो वैल्यू के चेंज होने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट हमारे इस टाइप के हैं। ये मैट्रिक्स है हमारी और इसके एलिमेंट हैं हमारे A11, A12, A13, A21, 22, A23, A31, A32, A33। तो ये हमारा फर्स्ट रॉ है, ये हमारा सेकेंड रॉ है, ये हमारा थर्ड रॉ है, और ऐसे ही हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकेंड कॉलम है, और ये हमारा थर्ड कॉलम है। ओके, ये कॉलम है हमारी और ये हमारे रॉ है। आई बात समझ में? हेलो। तो क्या कर सकते हैं हम इसको, एक दूसरे रॉ को दूसरे रॉ से हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम एक रॉ को दूसरे रॉ से इंटरचेंज कर सकते हैं, तो मैट्रिक्स तो हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी सेम रहेगी, बदलेगी नहीं। फिर हम क्या कर सकते हैं, पहला कि हम इसको हम रो को आर आई, ये हम इसे R1 रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम R2 रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम R3 रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम C1 रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम C2 रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम C3, ऐसे ही हमारे जितने रॉ रहेंगे वैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहला कि किसी भी रॉ को किसी भी रॉ से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो पहला हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है कि इंटरचेंज ऑफ टू रॉज एंड टू कॉलम्स, ठीक है। हम किसी भी ith रॉ को किसी भी jth रॉ से आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो भी हमारा मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा हमारा होता है कि किसी भी रॉ में हम एक नॉन स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी रॉ में एक नॉन स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन है कि हम किसी भी रॉ में एक दूसरी रॉ में नॉन जीरो एलिमेंट मल्टीप्लाई करके हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, jth रॉ में k एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई किया है और इसको ith रॉ में हम जोड़ दिए हैं। तो ये जो चेंज हो रही है वो आ रही जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। ओके, आई बात समझ में? ये सारे ऑपरेशन हम रो में कह रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, इसलिए हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। रॉ में ऑपरेशन कर रहे हैं इसलिए रॉ कर रहे हैं, और एलिमेंट्री इसलिए कहते हैं कि ये इसके पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से आता है, तो वो यहाँ पे हम अभी आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो आप यही जानिए कि ये हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशन है। तो ये हमारे तीन एलिमेंट्री ऑपरेशन रॉ ऑपरेशन हैं या रॉ ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसे ही हमारे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। तो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारे ऐसे ही होते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन।
वो क्या होता है, पहला हम किसी भी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा, हम किसी कॉलम में एक नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। सॉरी, आई ही रहेगा यहाँ पे, सी आई। और तीसरा हमारा है कि किसी दूसरे कॉलम में हम एक नॉन जीरो एलिमेंट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। हमारी ट्रांसफॉर्मेशन में कोई हमारी नेचर चेंज नहीं होगा मैट्रिक्स का। तो हम एक देखते हैं कैसे करते हैं हम। तो चलिए, तो पहला ऑपरेशन हम लगाते हैं। चलिए, एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए है आपके पास मैट्रिक्स 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स है। तो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, इसको हम इक्विवेलेंट, तो R1 इंटरचेंज बाई R2। हेलो, ये हमने ऑपरेशन लगाया, R1 को इंटरचेंज कर दिया R2 से। तो सबसे पहले हमारा R2 जो है वो R1 बन जाएगा। तो R2 क्या है, 4 5 6, और R1 क्या है, R1 बन जाएगा R2, तो 1 2 3। ठीक है, और इससे तीसरे वाले में कोई चेंज नहीं किया है, तो ये ऐसे ही रहेगा 7 8 9। ओके, हेलो। तो या तो हम इसे इस इक्विवेलेंट से लिखते हैं या हम एरो से लिखते हैं। ठीक है, ऐसे एरो देख लिखते हैं। ओके, अब कभी कभी हम यहाँ भी लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें हम मान लीजिए कि हम कर दें R3 टेन टू R3, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, तीसरे रो में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हर एक एलिमेंट तीसरे रो का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले और दूसरे में कोई चेंज नहीं हुआ, तो उसको सेम लिख देंगे, 4 5 6 1 2 3, और यहाँ पे तीसरे में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 14 16 और 18 ये हुआ। ठीक है, अब तीसरा ऑपरेशन क्या हो जाएगा, इसका हम तीसरा ऑपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ हम लिख दें, चलिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये ऑपरेशन हम कर रहे हैं, R2 टेन टू R2 प्लस R1, हम दोनों को जोड़ सकते हैं एक दूसरे में। तो ये हमारा हो जाएगा, पहला हमारे में R1 नहीं चेंज हो रहा है, तो R1 हम वैसे लिखते हैं 4 5 6। R2 हमारा बन रहा है R1 और R2 दोनों को जोड़ने से, तो ये हो जा रहा है 5, ये हो जा रहा है 7, ये हो जा रहा है 9। और R3 को लिए कोई ऑपरेशन नहीं है, तो सेम ऐसे ही 14 16 और 18। ओके, आगे बात समझ में आपको, तीनों ऑपरेशन। पहले हमने दोनों को इंटरचेंज कर दिया, दूसरे में हमने एक नॉन स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, और तीसरे में हमने किसी दूसरे दो राह को जोड़ दिया। तो इस प्रकार से हम ऑपरेशन करेंगे। ओके, हेलो क्लास, और कोई प्रॉब्लम आपको? तो चलिए इसको थोड़ा पढ़िएगा, कल तो क्लास नहीं है, कल ट्यूटोरियल वाली क्लास में हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है, तो आज देख लेंगे और आगे इसके। ओके, तो अभी हमारी दूसरी क्लास है, तो हम बंद कर रहे हैं इसको।